اس کر یتھ ڈرگ ایڈکشن سینٹرس مز ونیک تان کم سے کم 500 بچہ ٹھیک یم اس یت ایڈمٹ کر. امہ علاوہ چھ اراؤنڈ 1500 بچہ یم زن اس ڈیلی او پی ڈی بیسس پہ یور یوان اس یم ٹھیک گئی. اگرچہ یہ سینٹر پولیس ڈپارٹمنٹ چلاتا ہے مگر اس کے انچارج ڈاکٹر مظفر خان کا کہنا ہے کہ پولیس کا اس سینٹر کے کام کاج میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یس تہ پیشنٹ یور اس نش یوان چھ یہ چھ پانے موٹیویٹڈ آسان امس سچن کہین تہ زبردستی یس تہ یتن میڈیکل ریکارڈ چھ آسان اس تات من چھ کس تہ کانٛہہ مداخلت کرنچ گنجائش. ڈاکٹر خان کہتے ہیں کہ ڈرگ سے نجات کا علاج عام طور پہ 3 ہفتے تک چلتا ہے. سب سے پہلے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس کے بعد علاج شروع ہوتا ہے. یم ساتن اس یہ ایڈمٹ کران امس متواتر دوا کران استعمال تاکہ یم یت ونان وڈراول افیکٹس یم وڈراول افیکٹس گسان یہ دگ یہ نندر نین یہ دلس دھڑکن تیز گھن یا یہ بے چینی گھن یہ ساری کران کنٹرول باقیو دوو ست اور یہ سوری فیز گسان قریب قریب اکس ہفتس پہ 10 دہن تین کمپلیٹ یت ونان ڈیٹاکسیفکیشن فیز. شہنواز اس سینٹر سے اپنا علاج کروانے کے بعد 1 سال تک بالکل صحت یاب رہے مگر ان کا ماضی ایک بار پھر ان پہ حاوی ہو گیا. ایڈ کمپنی سے پھر لگ گیا ان لڑکوں سے جنہوں نے مجھے سکھایا تھا. ان دنوں شوپیان میں ایسا ہوا ادھر کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی تو جو لڑکے نشے کر رہے تھے شوپیان میں انہوں نے اب انجیکشن لینا شروع کر دیا. انجیکشن لیتے تھے وہ بھی لارج اماؤنٹ میں لیتے تھے انجیکشنز. 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ایک ہی سرنج سے 5-6 لڑکوں نے انجیکشن کیے. ڈاکٹر خان کہتے ہیں کہ شہنواز کی ہی طرح اور بھی کئی نوجوان علاج کے بعد ڈرگز کی طرف لوٹ جاتے ہیں. پتمن 2 ورین مز اراؤنڈ 20% ریلیپس ریٹس گمت. 20% ریلیپس مطلب گو اگر اس 7 بچہ ٹھیک کر 7 مز آسن کم سے کم 20 بچہ یمو زن واپس ڈرگ کور. اخ وجوہات کہ فیملی مز یم ڈسٹربنسز آس تم گئی زیادہ کھت زیادہ ابتر. دویم وجوہات گو یہ نیرنے پتہ اخ دوا شروع کران تاکہ امن گھن طلب گھن ام ڈرگسچ کہین. سہ مل ماجہ سانہ ورٲیی بند کورمت. ایک نوجوان علاج کے بعد ڈرگز کی طرف پھر سے راغب نہ ہو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا کوئی نصب العین بنائے اور پھر اپنی پوری توجہ اس پہ مرکوز کرے. ساتھ ہی ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یا مثبت رویہ ہونا بھی ضروری ہے. یہ پیشنٹ کت پہ ہیکون ات پنہ کمنٹی مز بی واپس سوزت یت یہ اخ پروڈکٹیو ممبر بن یتن یہ پن کیریئر بی سٹارٹ کرت یا اگر پران یہ ہیکہ بی پڑھائی کرت یا اگر کانٛہہ قصب کران یہ ہیکہ بی تتھ قصبس من گژھت. یہ کت پہ بچاون اس یہ تاکہ یہ گوس نہ بی ات مز گژھن کہین. شہنواز اب دوبارہ ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر میں زیر علاج ہیں مگر انہیں پھر سے ڈرگز لینے کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے. جب میں نے ٹیسٹ کیے تو ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ میرا ہیپیٹائٹس سی وائرس جو ہے وہ پازیٹیو نکلا. شہنواز امید کرتے ہیں کہ اور لوگ ان کی ان غلطیوں سے سبق لیں گے اور جلد از جلد اپنا علاج کروائیں گے. ایڈکٹ ہونے سے پہلے جو عزت ہوتی ہے وہ ایڈکٹ بننے کے بعد نہیں ہوتی ہے. اگر آپ ڈرگز کے شکار ہیں یا ایسے کسی شخص کو جانتے ہیں جو ڈرگز استعمال کرتا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے علاج کے لیے رجوع کریں. ڈرگ ایڈکشن ایک بیماری ہے جس کا بروقت علاج آپ کی زندگی بچا سکتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے شائستہ اور میری دوست لبنہ کو دیجیے اجازت. آپ سنتے رہیے پیش قدم. خدا حافظ. بچوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے والدین سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. والدین کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ قریبی وابستگی رکھے. کیا آپ کو پتا ہے والدین کے لیے کچھ اور چیزیں ضروری ہے جن پر نظر رکھ کر وہ اپنے بچوں کو منشیات سے بچا سکتے ہیں؟ ان میں سے کچھ یہ ہے: نئے دوست، سکول کے کام میں عدم دلچسپی، سکول نہ جانا یا پڑھائی میں کمزوری. یاد رکھیے، والدین ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو منشیات سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. دوستو، اب رک کرتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کیریئر کاؤنسلنگ کی اور. ہم میں سے بہت سے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں.
लेकिन कैसे और कहां एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेंगे पेशकदम के तौकीर हुसैन। दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मगरबी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए खातिर खा माली वसाइल दरकार है। इसलिए आपको दाखिला लेने के वक्त से ही इस बात को जहन में रखना होगा। सबसे पहले आपको उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए जिसमें आप दाखिला लेना चाहते हैं। अपने इंटरेस्ट के साथ साथ मुनासिब होगा कि आप उस कोर्स के करियर प्रोस्पेक्ट्स के मुतालिक भी जानकारी हासिल करें। उसके बाद आपको पता करना होगा कि जिस कोर्स में आप दाखिला लेना चाहते हैं वो किन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में करवाया जाता है। यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ाने वाली फैकल्टी की रेपुटेशन और उसमें होने वाले तहकीकी काम यूनिवर्सिटी चुनने में आपकी मदद करेंगे। कोर्स और यूनिवर्सिटी का इंतखाब करने के बाद आपको मालूम करना होगा कि उस कोर्स में कितनी और किस तरह की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। आपके पास सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन बेहतर है कि आप पहले स्कॉलरशिप हासिल करने की कोशिश करें। स्कॉलरशिप्स कई तरह की होती है। कोई सरकार की तरफ से दी जाती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है बैरुल मुल्क तालीम हासिल करने के लिए। बहुत सारी गैर सरकारी तंजीमें भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है, जैसे फोर्ड फाउंडेशन। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज भी अपने स्टूडेंट्स को कई तरह की स्कॉलरशिप देती है। एक बात आपको जहन में रखनी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में दाखिले के तरीके अलग अलग है। यूरोप में आमतौर से दाखिला आपकी एप्लीकेशन और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड पे मुनहसर होता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में आपको क्वालिफाइंग टेस्ट से गुजरना होगा, जैसे GRE और टॉफल। GRE का इम्तिहान अच्छा खासा मुश्किल होता है और आपको इसके लिए अच्छी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सही किताबें और सिस्टमैटिक प्रिपरेशन लाजमी है। GRE में अच्छा स्कोर आपको फुल स्कॉलरशिप दिला सकता है। जिस कोर्स और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहते हैं उसके दाखिले का पूरा प्रोसेस जरूर मालूम कर लें। ये जानकारी अक्सर इदारे की वेबसाइट पर मौजूद होती है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज के दाखिले की प्रोसेस भी अच्छी खासी महंगी है, इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ ही दाखिले की कार्रवाई शुरू करें। मुख्तलिफ ममालिक के सफारत खानों में भी उनकी यूनिवर्सिटीज और स्कॉलरशिप्स की जानकारी देने के लिए अलहदा से लोग मुकर्रर होते हैं। आप उनकी वेबसाइट्स भी चेक कर सकते हैं या उन्हें खुद भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये मुख्तसर सी जानकारी आपके काम आएगी। इसी के साथ मुझे यानी तौकीर हुसैन को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहे पेशकदम। यासिफ, आप कहाँ जा रहे हैं, यूरोप या अमेरिका? नौरीन, अभी तो हम चलते हैं नेहा के पास, जो हमें बताएंगी कुछ कारामद घरेलू नुस्खे। जी दोस्तों, आइए सुनते हैं नेहा के नुस्खे। अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूं आपकी मेजबान नेहा और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ घरेलू पर काम के नुस्खे। पिंपल्स एक ऐसी चीज है जिससे आजकल हर एक उम्र के लोग परेशान हैं, पर कुछ नुस्खे इस्तेमाल करके आप घर में बैठे ही इससे निजात पा सकते हैं। एक ऐसा ही नुस्खा है जिसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं जो पिंपल्स और दानों से निजात दिलाती हैं। आपको एक पूरा लहसुन लेकर उसका पेस्ट बना लेना है और अपने चेहरे पे लगाकर 10 से 15 मिनट तक रहने देना है। फिर आपको एक साफ टॉवल लेकर उसे गर्म पानी में डाल के निचोड़ लेना है और उस टॉवल से अपना चेहरा साफ कर लेना है। इससे आपके पिंपल्स ठीक होने लगेंगे। या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं संतरे का छिलका। आपको संतरे का छिलका और पानी लेके उसका मिक्सर में पेस्ट बना लेना है और जहां पर पिंपल हो वहां लगाना है। इसे अपने चेहरे पे कुछ देर तक रहने दें और फिर अपना चेहरा पानी से धो लें। तो सामीन, ये तो थे कुछ घरेलू नुस्खे, पर एक बात का सख्त ख्याल रखें, कभी भी अपने पिंपल्स को हाथ ना लगाएं और ना ही इन्हें फोड़ें, इससे परेशानी बढ़ सकती है। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए नुस्खों के साथ। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। सामीन, हमारा अगला सेगमेंट है टैलेंट का, जिसमें आप सुनेंगे एक नात शरीफ अवंतीपोरा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में ज़ेर तालीम 9th क्लास की बिल्किस अयूब से। सबा मुझको ले चल दया रे मोहम्मद, जहाँ हो मेरे ताजदार मोहम्मद, वही विरद करती हूँ नामे मोहम्मद,
उड़ती हूँ गुबारे मोहम्मद। न दौलत की चाह न शोहरत की चाह, मेरे जान मेरे दिल निसारे मोहम्मद। न दुनिया की चाहत न उक़बा की चाह, मुझे बस मेरा वो नज़ारे मोहम्मद। दीने मुजम्मल दीने मुकम्मल, हमें रास्ता तू दिखा दे मोहम्मद। कदमों में मुझको छुपा ले मोहम्मद, नजर कुछ ना आए सिवाए मोहम्मद। सबा मुझको ले चल दयारे मोहम्मद, जहाँ हो मेरे ताजदारे मोहम्मद। दोस्तों, बिल्किस की दिलकश आवाज के बाद आइए सुनते हैं अवाम की आवाज हमारे अगले सेगमेंट कथपिंड में, जिसमें हमारा आज का मौजू है अगर आपको सरकारी हुक्काम से जानकारी हासिल करने का मौका मिले तो आप उनसे किस तरह की जानकारी हासिल करना चाहेंगे। मिशनाव हिलाल अहमद पंडित ठेकेदारी सत वाबस्ते यहां वन अजमन हुकामन चीफ मिनिस्टर अमिस यहां वन क्या फंडस करान मिस यूज, खास कर डिपार्टमेंट इरिगेशन डिवीजन त्राल यमो इथे कन एक्सटेंशन कर इशू विदाउट टेंडर्स, तो यह जन सड़ा खिलाफ वर्जी सही खिलाफ वर्जी अमिच तुम करो सर्वे पन वो तुम बेरोजगारी कत दह खो दह बढ़ान। सरकारी दफातर में काम वक्त पे क्यों नहीं होता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुताहिर है और मेरा सवाल ये होगा हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी से कि जो हमें फंड्स मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए वो कहाँ को जाते हैं, वो पूरी तरह डेवलपमेंट में यूटिलाइज क्यों नहीं होते? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफा महराज बाबा है। मैं लेक्चरर हूँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और मेरा ये क्वेश्चन है ख़ास करके पीडीडी डिपार्टमेंट से कि अगर हमारे कश्मीर में ज़्यादा पावर जनरेशन हो रहा है, इसके बावजूद भी हमें कम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्यों है हमारे घरों में, हमारे ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुदस्सिर। मैं अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय ब्रेदरन से ये पोज करना चाहती हूँ कि क्या आपको ये सही लग रहा है कि हम जो आप जो ये डिमांड कर रहे हो कि हमारा जो ये एज है रिटायरमेंट एज कि वो हम एनहांस करें फ्रॉम 58 to 60, क्या आपको नहीं लग रहा है जो हमारे यूथ पास आउट से यहाँ से निकल रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगी? जी, मेरा नाम सईद शहनवाज। जी, मेरा क्वेश्चन सिंपली ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने पैसे दिए हैं, गवर्नमेंट पैसे देता है एक इदारे को, एक इंस्टीट्यूट को, तो क्या वो उसके बाद देखता है वो पैसा वहाँ लगा भी है या कि नहीं? मेरा नाम दाऊद है। मैं गवर्नमेंट से यही सवाल कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है कि वो करप्शन को इरेडिकेट नहीं कर पा रहे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप पेशकदम से मुतल्लिक अपने तासुरात हमें लिख के भेज सकते हैं। हमारा पता है पेशकदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम PESHKADAM@gmail.com। इसी के साथ अपने मेजबान यासिम मल्ला और नौरीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। आप पेशकदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर, और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।